Okay. So, good morning, dear students. Okay, this is our next subject. Okay, this is not your water resource. Today we are learning. We'll discuss about your another subject, which is your advanced highway and transportation engineering. Okay, under this subject there are four modules are there. Okay, your traffic engineering, airport engineering, railway engineering, and transportation planning. Okay, I will start from your airport engineering. So today we will discuss two lecture if time permits. Okay, first is your introduction. What we will learn. Okay, what are the what we understand by the airport? What are the different components are there? What are the classifications of airport are there? Okay, we will learn about it. So in this lecture, we will discuss about some introduction of airport engineering. See, first we will learn the definition. What are the advantages and disadvantages of airport engineering? Okay, or rather you can say of airport. Then it comes here classification of airport, and this one fourth point is very important. Please remember, fourth point. It may come in your exam also. Okay, your site selection. What are the different factors which are considered for selection of your site for planning airport? Okay, and also what are the different surveys that we must conduct? And there is one law for considering your airport obstruction and runway orientation. Okay, runway means what? I will explain it in the later lecture. Okay, in brief, I can say that airport consists of several components. Among these, one component, very important component, is the runway. Railway is there, highway is there, your runway. Okay, highway is for it is the carriageway for vehicles. Vehicles means here car, uh, for passenger cars and all. Okay, but railway is for, it is a carriageway for trains. Okay, similarly runway is what? It is a carriageway for your aircraft. Okay, where your aircraft will land or it will take off. So that region, a rectangular region or the pavement which is used for landing and takeoff of the aircraft is the runway. Okay, and in the upcoming lectures we will discuss this design of the runway. Okay, orientation as well as the runway length, how to calculate the runway length and how to design the orientation of this runway we will learn. See, before starting, who invented this aircraft? Idea of aircraft, first invention, anyone? किसने इन्वेंट किया, किसी को पता है? सर राइट्स ब्रदर्स ने किया उनके। Yes, Wright brothers. Okay, they were the first to invent such an vehicle. Okay, where you can fly. Using that vehicle, you can fly. That is an aircraft. Okay, initial first aircraft invented by the Wright brothers in the year 1902. Whereas in India, the idea of the concept of this airport engineering started in the year of 1911. Okay, and why it was developed? For military purpose. See, in our highway engineering also, why this transportation, why this highway is constructed? Okay, why we are constructing highway? How it came? First, to travel from one place to another. Okay, and when its importance मतलब इसका इम्पोर्टेंस और कब बढ़ने लगा? जब ये सब मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होने के लिए हम लोग को चाहिए कि वी शुड कैरी ह्यूज हेवी लोडेड टैंक्स एंड ऑल दोस ट्रूप्स वगैरह व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कुछ चाहिए था, राइट? रास्ता चाहिए था. सिमिलरली एयरक्राफ्ट भी उसी कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पे मतलब आया है कि हमको भी जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, राइट? एंड इंडिया में सबसे पहले किस वजह से ये इंट्रोडक्शन हुआ था? बिकॉज ऑफ मिलिट्री पर्पस. ओके, नाउ कम्स द डेफिनेशन. डेफिनेशन इज व्हाट? देखो, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में तुम लोग को सिर्फ ये प्लेन वेन सिर्फ नहीं आता है. ओके, प्लेन वेन तो तुम्हारा पूरा ऑटोमोबाइल उस सब में चला जाएगा, लेकिन हम लोग को एज एन इंजीनियर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आता क्या है? एयरपोर्ट, अगर तुमको बोलेगा कि एयरपोर्ट है तो क्या दिखाई देता है तुम लोग को? एयरपोर्ट में क्या क्या दिखाई देता है? एयरपोर्ट में हम जाएंगे अपने एयरपोर्ट.
এখনো যাওনি মানে দেখেছো তো নিশ্চয়ই, দেখে তো हो ना। ম্যাম উপরে देखो শুধু প্লেনটা উঠতে দেখেছি। हाँ, सो प्लेन उड़ना तो वो तो ऊपर आकाश में है, ठीक है, लेकिन नीचे जो जमीन पर है प्लेन के लिए, राइट, फैसिलिटीज ম্যাম जो भी কিছু है। জন অ্যাড হতে চাইছে। এত লেট করে ऐड হলে তো মুশকিল। ওকে, সৌরভ কুমার এতদিন পর। सी एयरपोर्ट इज बेसिकली एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे क्या क्या काम होता है। एक है कि लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑकर्स एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट ऑकर्स। ओके, वहाँ पे वो फैसिलिटी होना चाहिए कि जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ का सुविधा हो, एक वो होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि देर विल बी अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सेवरल अदर फैसिलिटीज। जैसे तुम लोग जब एंटर करते हो एयरपोर्ट में, यू विल सी वन स्ट्रक्चर, राइट, यू विल सी वन बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बिल्डिंग। अब उसी बिल्डिंग में तुम्हारा क्या है, तुम लोग का लगेज मतलब वहाँ पे करते हो, राइट, टिकट विकट वो करते हो तुम लोग, मतलब अपना लगेज को मतलब वहाँ पे डंप कर देते हो, राइट। तो वहीं पर ही कितना कुछ काम वाम एवरीथिंग दैट ऑकर्स इन दैट बिल्डिंग, ठीक है। अब तुम बिल्डिंग पे वेट करोगे, आके तुम्हारा क्या रनवे से पूरा डायरेक्ट तुमको एयरक्राफ्ट आएगा लेने के लिए? नहीं, देर विल बी सम प्लेस जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट को रखेगा, राइट, पार्किंग पार्किंग करके रखेगा, फिर पैसेंजर लोगों को वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा, राइट। सो ऑल दिस पार्ट, ये जो यहाँ पे पार्किंग करके रख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एप्रॉन। ओके, जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है सामान पैसेंजर्स का, जिस जगह पे खड़े रखकर एयरक्राफ्ट को, दैट इज योर एप्रॉन। से फॉर एग्जाम्पल ये सब है तुम्हारा एप्रॉन, देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट, एप्रॉन। अब ये जा रहा है, इधर से जाएगा ये एक ये जो रास्ता है, दिस इज द टैक्सी वे, मतलब ये जो कनेक्टिंग द रनवे विथ अदर फैसिलिटीज, जो रास्ता कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टैक्सी वे। ओके, टैक्सी वे मतलब तुम प्लेन जमीन में ही वो चलेगा, वो उड़ नहीं रहा है, वो जमीन पे चलते चलते जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ टैक्सी। तुमको कैरी करके जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा जब, तब वो अपना स्पीड गेन करके उड़ जाएगा। सो ये वाला जो है, दिस इज द रनवे। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ, एयरपोर्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक टावर भी है वहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल टावर जिसको बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, यहाँ पे भी ट्रैफिक होता है, राइट, यहाँ पे भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है। सो ये सब तुम्हारा सब कंबाइन करके ही एयरपोर्ट होता है। और कभी कभी और एक जगह होता है, देखो, और एक जगह होता है जहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स के लिए क्या बोलते हैं, शेल्टर, ठीक है, रिपेयर। अगर एरोप्लेन खराब हो गया तो क्या करोगे, फेंक दोगे? नहीं, उसको एक रिपेयर करोगे, राइट। रिपेयर करने के लिए यू शुड टेक इन सर्टेन पोजीशन, कुछ जगह पे लेकर जाना है उसको, कुछ क्या बोलते हैं, शेल्टर या रिपेयर जोन, वहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए लेकर जाना है, दैट इज कॉल्ड हैंगर, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंगर। जैसे तुम लोग अपना कपड़ा हैंग करके रख देते हो हैंगर में, वैसे ही ये एयरक्राफ्ट को भी उस शेड के अंदर रख देता है फॉर रिपेयर, मेंटेनिंग, व्हाटएवर एवरीथिंग। ओके, उसको बोलते हैं हैंगर। सो टोटल जो सब कुछ मिलाकर ही तुम लोग का क्या होता है, इट इज नोन एज एयरपोर्ट। ओके, अब एयरपोर्ट के अंदर ही तुमको डिजाइन क्या करना है, ये जो रनवे है उसको लेंथ डिजाइन करना है, ठीक है, ये जो टैक्सी वे है उसका भी लेंथ, रेडियस कितना, टर्निंग रेडियस कितना है, वो सब डिजाइन करना है, ठीक है। सो बेसिकली इन योर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सिलेबस मेन क्या है, ये है रनवे का, ये है ओरिएंटेशन, ये जो इन विच डायरेक्शन दिस रनवे हैज बीन ओरिएंटेड, वी हैव टू डिजाइन दैट आल्सो। ओके, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आता है कि एडवांटेजेस, बोलो एक एक एडवांटेज बोलो तो क्या क्या हो सकता है। एनीवन? एडवांटेज ऑफ एन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, मैं बाकी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। এক স্থান থেকে অন্য স্থান খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এয়ারপোর্টে। यस, एक है कि हाईएस्ट स्पीड है, राइट, तुम ट्रेन या तुम बस या तुम शिप, जिससे जितना डिस्टेंस कवर करोगे विद इन सर्टेन टाइम, ठीक है, उससे कई ज़्यादा
वो स्पीड में चला जाता है एयरपोर्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट, राइट। तो उसके लिए तुमको कम टाइम में यू विल रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस इज वन एडवांटेज। दूसरा, एनी अदर? श्यामश्री, शेख मिनार बोलो আর কি হবে? देखो, एक है कि एक्सेस टू द रिमोट एरियाज, मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे तुम लोग रोडवे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, रेलवे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, शिप तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर भी तुम लोग उस जगह पे पहुंच जाओगे, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम प्राइवेट जेट, राइट। तो तुम एक मतलब रिमोट, जहाँ पे कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इजीली जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग क्या एयरक्राफ्ट ले लेंगे एक, वहाँ पे इजीली जा सकते हैं, राइट। ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि मोस्टली यूज्ड एयरक्राफ्ट मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? फॉर एरियल फोटोग्राफी के लिए भी, ठीक है। ऊपर से कुछ भी स्ट्रक्चर दिखना है या कुछ भी रीजन को दिखना है, मैप दिखना है, सो अगर हम एरियल फोटोग्राफी में भी ये हेल्पफुल है, ओके। दूसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या है, ये वाला जो अभी बहुत होता रहता है, जैसे जहाँ पे फ्लड हो गया वहाँ पे तुम्हारा गाड़ी नहीं जा सकता है, नौका नहीं जा सकता, तो क्या जा रहा है, हम लोग का हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा है, राइट। सो these are used in your relief or rescue operation also, okay। और लास्ट वाला है तुम्हारा एग्रीकल्चरल स्प्रे, मतलब कि ऐसे स्प्रे कर देना पूरा लैंड को, तुम फर्टिलाइजर या कुछ इंसेक्टिसाइड से पूरा उसको फिल मतलब एयर स्प्रे कर दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर एयरक्राफ्ट, ओके। सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस जो कि बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड से नहीं हो पा रहा है, ओके। सो दिस आर द एडवांटेज। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिसएडवांटेज? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बाकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की तुलना पर? एक्सपेंसिव मैम। यस, एक्सपेंसिव, राइट, कॉस्टलियर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तुम खुद ही देखो ना, टिकट मतलब एयरपोर्ट का मतलब जो फ्लाइट का टिकट ही कितना कॉस्ट होता है, राइट, बाकी तुम लोग का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तुलना पर, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ये नॉइज, ओके, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब अगर आसपास में ये एयरपोर्ट के आसपास में कोई रेजिडेंशियल इलाका रहेगा, जनरली होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर रहा तो वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ओके। और तीसरा है कि इट रिक्वायर्स हाई फ्यूल कंजम्पशन, राइट, ये बहुत ज़्यादा तेल मतलब फ्यूल खाता है, ठीक है। सो इसके लिए भी रिसोर्सेज क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए दिस इज द डिसएडवांटेज। एयरपोर्ट को बहुत तरीके से क्लासिफाई भी कर जा सकते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज। तुम लोग का इन जनरल एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन बोलने से क्या आता है माइंड में? इन जनरल मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हटाओ, ये सब हटाओ, ठीक है, हटा के इन जनरल में क्या आता है कि कितना टाइप का एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज, ठीक है, मतलब किस लिए हम ये यूज कर सकते हैं, बोलो, मतलब किस जगह से किस जगह पर जा सकते हैं कम्युनिकेशन। यस यस, एक है तुम्हारा इंटरनेशनल, दूसरा है तुम्हारा डोमेस्टिक, ये हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ओके। तीसरा है तुम्हारा रीजनल, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब तो पता है आउट ऑफ कंट्री जा सकता है, राइट। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री इटसेल्फ, और रीजनल मतलब थोड़ा छोटा छोटा एरिया विद इन द पर्टिकुलर रीजन में हम लोग वो यूज कर सकते हैं दैट एयरपोर्ट, ओके। सो ये एक है, इन जनरल ये वाला आता है। नाउ टेक्निकली क्या आता है, देखो टेक्निकली दो तरीका है, एक है कि अकॉर्डिंग टू द, ये सब याद रखना है, ओके, फेडरल एविएशन एजेंसी फा, ओके, और दूसरा क्या है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इकाओ, ओके, ECAO। अब इसके बेसिस पर बोला गया है दो टाइप का होगा, एक है तुम्हारा नॉन प्राइमरी, ठीक है, वे इसको किस बेसिस पे इसको नॉन प्राइमरी बोल रहा है, इफ द पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल इज लेस देन 1000, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मतलब उस एयरपोर्ट को यूज कर रहा है कितना नंबर ऑफ पैसेंजर्स,
10,000 पर ईयर, ठीक है। लेस देन अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एयरपोर्ट, ओके, नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट। देन प्राइमरी एयरपोर्ट क्या है, जो ऑब्वियसली जो ग्रेटर देन 10,000 पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल करता है, ओके। नाउ बेस्ड ऑन द इकाउ इट इज बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ। एक है तुम्हारा बेस्ड ऑन रनवे लेंथ, हम जो बोले थे रनवे लेंथ, ये जो रनवे लेंथ, ओके, दिस लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन दिस लेंथ, ICAO has classified airport into 5 types, okay, 5 types। क्या क्या है, A B C D E ऐसे करके एयरपोर्ट A B C D ऐसा करके दे दिया, ठीक है। Whereas A किसको बोल रहा है, A उसको बोलेंगे for which that runway, उस एयरपोर्ट में जो रनवे है वो लेंथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, कंपेयर टू द अदर एयरपोर्ट। अब बी में जैसे रहेगा तो ए का जो था उससे थोड़ा कम है, जब ई में एकदम ई लास्ट में पहुंच जाएंगे तो सबसे छोटा जिसमें, ठीक है, जहाँ पे रनवे विल बी शॉर्टेस्ट, दैट इज योर ई एयरपोर्ट, ओके, ई क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। नाउ बेस्ड ऑन द ESWL एंड द टायर प्रेशर ऑफ द एयरक्राफ्ट। सी ESWL क्या था, ये लोग तुम लोग पढ़े थे, इस दिस वन ESWL कहाँ पे आ रहा है, ट्रैफिक डिजाइन है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। यस, पेवमेंट डिजाइन इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, मतलब कि हमको 10 ठो व्हील हो सकता है, 2 ठो व्हील हो सकता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन का व्हील हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस पर्पस के लिए वी विल कन्वर्ट दोज कॉम्बिनेशन इनटू द सिंगल व्हील, ओके। तो वो जो डबल व्हील जो इफेक्ट करता है, सिंगल व्हील भी सेम, उसका इक्विवेलेंट सिंगल व्हील भी अगर सेम इफेक्ट करेगा, देन वी विल से दैट सिंगल व्हील इज इक्विवेलेंट टू द डबल व्हील कॉम्बिनेशन, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील, ओके। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ओके। तो ये है, तो बेस्ड ऑन दिस ESWL एंड द टायर प्रेशर, मतलब जो क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट का भी तो नीचे तो टायर आता है ना, सिर्फ उड़ता तो नहीं है, जमीन में भी तो चलता है, तो टायर रहता है, राइट, तो उसका भी एक प्रेशर आता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस टू वैल्यूज, based upon these two values, ICAO has classified aircraft into 7 divisions, okay, 7 parts में उसको classify कर दिया। तो 1 to 7, तो 1 जो है मैक्सिमम ESW एंड टायर प्रेशर वो कैरी कर सकता है, और 7 क्या है, मिनिमम और ESW एंड टायर प्रेशर वो कैरी कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू देयर आर बेसिकली हाउ टू, ईच में तुम्हारा 2 टाइप का ऐसे करके है, ओके। नाउ फैक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन, मतलब कि तुम एक सपोज यू आर प्लानिंग एन एयरक्राफ्ट नहीं होगा, सपोज एयरपोर्ट होगा, ओके, दिस इज एयरक्राफ्ट नहीं एयरपोर्ट। तुमको बोला गया है कि तुम एक जगह पे जाओ, ठीक है, सर्वे वर्वे करो, अब बोलो वो जगह सुटेबल है कि नहीं एयरपोर्ट के लिए, राइट। सो तुम क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे फॉर द साइट सिलेक्शन, मतलब उस जगह पर एयरपोर्ट डिजाइन करना है या एयरपोर्ट बनाना है, तो दैट साइट का व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, तो उससे हमको पता चलेगा अच्छा ये सुटेबल है या नहीं है, राइट। सो यही सब फैक्टर्स है। तो कोई बोल सकता है क्या क्या फैक्टर्स आ सकता है, इन जनरली बोलते जाओ। मैम रिमोट एरिया होते হবে, रिमोट एरिया बोलते मतलब एक फाका फाका एरिया एकदम, यस 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 यस, फाका, मतलब देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन अराउंड दैट लोकेलिटी, राइट, क्योंकि प्लेन आ रहा है जा रहा है तो क्या है उसका विजिबिलिटी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। वेरी गुड, वो भी है, वो एक पॉइंट है। और मैम टोपोग्राफी देखता हो तो टोपोग्राफी, यस, मतलब ये हिली है, टेरेन है ना कि माउंटेनियस टेरेन है, ये भी देखना है हमको। और बोलो দুটো তো ভেরি গুড, দুটো বললেছো। ওয়েদার কন্ডিশন দেখতে হবে না ম্যাম? वेदर बोलते, सी वेदर, यहाँ पे वेदर कंडीशन कहने से एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज विंड, ठीक है, मतलब कि हवा का डायरेक्शन, हवा कितना इंटेंसिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ओके। अब तुम बोलो अगर तुमको रनवे डिजाइन करना पड़ेगा, सपोज सॉरी सपोज यू वांट टू डिजाइन अ रनवे, सपोज ये रनवे है, ठीक है। अब तुम बोलो ये रनवे किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मैं बोलूं, ये जो रनवे तुम्हारा रनवे है जहाँ पे तुम्हारा लैंडिंग टेक ऑफ होता है, ठीक है,
एक लैंडिंग होता है और एक टेक ऑफ होता है, राइट। अब बोलो किस डायरेक्शन में ये ओरिएंटेशन शुड बी, रनवे का ओरिएंटेशन शुड बी इन विच डायरेक्शन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। पैरेलल मैम, पैरेलल। पैरेलल, राइट। मतलब कि इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन से अगर विंड आ जा रहा है, इस डायरेक्शन से अगर जा रहा है, वी हैव टू ओरिएंट आवर रनवे इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। तुम बाकी डायरेक्शन में भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि एकदम पैरेलल ही होना है, थोड़ा इंक्लाइन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक कब होगा? इकोनॉमिक का मतलब है रनवे लेंथ बनाने में खर्चा कम लगेगा। अब रनवे लेंथ खर्चा कब होगा? जब ये रनवे लेंथ विल बी शॉर्टेस्ट, राइट, मतलब छोटा रहेगा, लेंथ विल बी लेस। मतलब वहाँ पे लेंथ बनाना मतलब क्या है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन पेवमेंट इटसेल्फ, राइट। पेवमेंट के लिए तो खर्चा रहेगा, तो पेवमेंट का खर्चा बचेगा कैसे? अगर ये लेंथ हम इसको कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये लेंथ कम कब होगा? जब ये ओरिएंटेशन विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, अभी फिलहाल ये रखो, ओके। या ये याद रखना है कि हम लोग का ओरिएंटेशन शुड बी पैरेलल टू द, मतलब मैक्सिमम जिस डायरेक्शन से विंड फ्लो करता है उस डायरेक्शन में पैरेलल होना चाहिए, ओके। इसका फंडा क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट दिस टुडेज लेक्चर, ओके, नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, और ये था विंड, वेदर कंडीशन में ये विंड आ रहा है, वेरी गुड। और क्या क्या होता है? टोपोग्राफी बोला, विंड बोला, ऑब्स्ट्रक्शन बोला, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी मतलब हम लोग का ऐसा होना चाहिए कि क्लियरेंस होना चाहिए, रनवे लेंथ के सामने पीछे दोनों जगह क्लियरेंस शुड बी देयर, ओके, सो दैट हम लोग को अगर लैंडिंग कर रहे या टेक ऑफ कर रहे तो सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई विजिबिलिटी मस्ट बी क्लियर, मतलब कि ऐसा सिचुएशन में नहीं, ऐसा जगह पे हमको साइड पे नहीं प्लान करना है जहाँ पे देयर विल बी सम क्या बोलते हैं, फॉगी रहेगा या स्मोकी रीजन रहेगा, राइट। तो क्या होगा, कॉकपिट में जो बैठा है वो तो दिखाई नहीं देगा उसको, राइट, सामने क्लियरली। तो इसीलिए ये सब कंडीशन हमको रखना है, ओके। और एक है कि तुम लोग का ये जो बोला है कि आसपास में ज़्यादा रेसिडेंशियल इलाका नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसा रखना है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं तुम्हारा एयरक्राफ्ट की वजह से क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो आसपास में अगर तुम्हारा रेसिडेंशियल रहेगा भी तो क्या होगा, वहाँ पे इफेक्ट करेगा, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, सॉइल कंडीशन, पेवमेंट, ट्रैफिक, मतलब जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसका भी तो बहुत सारा लोड लेकर आ रहा है, वो खुद का एक वेट होगा, सेल्फ वेट है, फिर पैसेंजर लोगों का, फिर तुम्हारा कार्गो लोग, सबका तो लोड रहता है, राइट। तो वो तुम्हारा पेवमेंट के ऊपर से जा रहा है, तो योर नीचे का सॉइल जो है अल्टीमेटली लोड विल बी बियर बाय द सॉइल ओनली, राइट। तो सॉइल का कंडीशन कैसा है, सॉइल का प्रॉपर्टी कैसा है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसा है, ठीक है। सो वी शुड कंसीडर दिस एवरीथिंग, ओके। सो आते हैं कि क्या क्या है, एक आता है कि यूज के ऊपर, ये सिविलियन पर्पज के लिए है या मिलिट्री पर्पज के लिए, ओके। प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बगल अगल में दो दो एयरपोर्ट है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टेक ऑफ और लैंडिंग में थोड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, टोपोग्राफी, वो बोला तुम लोग, ये भी आ रहा है, बेटर विजिबिलिटी, गुड ड्रेनेज, ओके, ऐसा होना चाहिए टोपोग्राफी भी। ऑब्स्ट्रक्शन जो केमिस्ट्री बोली अभी कि क्लियरेंस होना चाहिए, पुअर विजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, राइट। और सम इट शुड बी फ्री फ्रॉम विजिबिलिटी डिफेक्ट्स लाइक फॉग, स्मोक, हेज, लाइक दिस। इसके अलावा और क्या क्या है तुम्हारा, विंड, अभी किसने बोला, विंड बोला था, राइट, विंड रोज। तो ये जो विंड है, रनवे ओरिएंटेशन इज डिजाइन कंसिडरिंग विंड डायरेक्शन, और जो मेथड से कर रहे हैं दैट इज योर विंड रोज डायग्राम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल वेज, ओके। और इसके लिए हमको कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, मेट्रोलॉजिकल डाटा वी नीड टू कलेक्ट, ठीक है, मतलब विंड डाटा। तो कितना विंड डाटा, मिनिमम 5 years विंड डाटा मस्ट बी कलेक्टेड, ओके। नॉइज न्यूसेंस होना चाहिए, आसपास में बफर एरिया, बफर मतलब कि वेजिटेटिव कवर्ड एरिया, वैसा होना चाहिए, हाँ, सो दैट इट विल एब्जॉर्ब द नॉइज, ओके। फ्यूचर डेवलपमेंट भी देखना है, तुम ऐसा जगह पर दे दिए कि फ्यूचर में अगर ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे तुम लोग का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोल रहे हैं, व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ता जा रहा है, राइट, पर ईयर बढ़ता है एनुअली, वैसे एयरक्राफ्ट का भी ट्रैफिक बढ़ता है, राइट। तो तुम अगर ऐसा डिजाइन करोगे एयरपोर्ट जहाँ पे ये जो ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसिडर ही नहीं करोगे,
मतलब कि इंक्रीमेंट इन द ट्रैफिक वॉल्यूम तुम कंसिडर ही नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना क्या बोलते हैं कैपेसिटी जल्दी रीच कर लेगा, और कैपेसिटी रीच कर लेगा मतलब वहाँ पे भी वही सेम कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो फ्यूचर डेवलपमेंट भी हमको कंसिडर करना है। यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट मतलब है कि फ्यूचर ट्रैफिक, ठीक है, कि कितना लोग ये यूज कर रहा है। बेसिकली तो वही है, जितना नंबर ऑफ लोग यूज करेगा तुम्हारा ट्रैफिक एयरक्राफ्ट भी नंबर बढ़ जाएगा, राइट। एयरक्राफ्ट ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली ट्रैफिक भी ग्रोथ। ओके, दूसरा ड्रेनेज एंड सॉइल कंडीशंस। ओके, अब सर्वे में आते हैं। सर्वे के लिए क्या क्या चाहिए, ट्रैफिक हमको चाहिए, ट्रैफिक सर्वे हमको करना है। यहाँ पे ट्रैफिक मतलब गाड़ी का सिर्फ नहीं है, व्हीकल इट मे बी एनीथिंग, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, शिप, ठीक है, सबमरीन, तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रेन, मेट्रो, कुछ भी हो सकता है व्हीकल मतलब, लेकिन यहाँ पे व्हीकल मतलब है एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो एयरक्राफ्ट का ट्रैफिक सर्वेज भी हमको करना है। दूसरा है तुम्हारा मेट्रोलॉजिकल सर्वे, स्पीड में आ रहा है वो सब भी चाहिए। रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि ड्रेनेज हमको चाहिए कंसीडर करना है तो रेनफॉल का पैटर्न भी फॉलो करना है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट सर्वेज वी नीड टू कंसीडर। टोपोग्राफिक सर्वेज तो आता ही है, सॉइल सर्वे आता है, राइट। मटेरियल सर्वे मतलब जिस चीज से तुम क्या बोलते हो कंस्ट्रक्शन करोगे, राइट, तो उसका मटेरियल्स का सर्वे। ड्रेनेज सर्वे में आता है तुम्हारा लोकेशन ऑफ द ड्रेन्स, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है तुम्हारा ड्रेन्स लोकेटेड है, और क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर मतलब रन ऑफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा देखना है। ओके, तो दिस आर द डिफरेंट सर्वेज। नाउ ये वाला लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इन दिस लेक्चर। ओके, ये क्या है, दिस इज अ जोनिंग लॉस। देखो बहुत सारा, अच्छा आछो कि तुमरा सुनते पाচ্ছো? हाँ मैम। ओके, सी जोनिंग लॉज। ओके, जोनिंग लॉज मतलब क्या है कि तुमको मतलब एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं एयरपोर्ट को पूरा एकदम अलग सा जोन में कर देना है, ठीक है। वहाँ पे कोई तुम्हारा ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन अगर होगा या हाई राइज बिल्डिंग अगर आसपास में बनेगा तो उसके लिए वी नीड टू टेक सम परमिशंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। ओके, सो देयर आर सेवरल लॉज, मतलब ये लॉ वाइज में इसको डिवाइड कर दिया है कि इसके लिए ये रूल्स है, इसके लिए ये रूल्स है, तुमको ये फॉलो करने के लिए, ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये रूल्स फॉलो करना है। सो दिस आर द डिफरेंट लॉज। ओके, तो इसके अंदर क्या आता है, फ्यूचर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ना बने। अभी तो प्लेन है, यहाँ पे रास्ता मतलब कुछ नहीं है, सराउंडिंग में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा, राइट। अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी होता रहेगा। तो ये जोन लॉ उसी को प्रिवेंट करता है कि आसपास में इन फ्यूचर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अभी तो है नहीं, अच्छा है, बाद में भी होना नहीं चाहिए। ओके, इट विल प्रिवेंट एक्टिविटीज सच एज विच जनरेट्स स्मोक, मतलब आसपास में इंडस्ट्रियल इलाका नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, चिमनी विमनी से तुम्हारा धुआं निकलता रहेगा, धुआं निकलने का आसपास का एयर को पोल्यूटेंट कर देगा तो स्मोकी हो जाएगा। तो जब एयरक्राफ्ट मतलब लैंडिंग या टेक ऑफ करने के टाइम में उसको विजिबिलिटी, क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये सब नहीं होना चाहिए एट द विसिनिटी, मतलब नियर द एयरपोर्ट। कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विच रिड्यूस एयरपोर्ट विजिबिलिटी, सेम है यहाँ पे। नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हाई राइज बिल्डिंग। ओके, मतलब अगर हाई राइज बिल्डिंग करना है तो उसको सब कुछ सेटिस्फाई करके परमिशन लेके ही करना पड़ेगा। सो दिस कम्स अंडर द जोनिंग लॉज। तो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं लेक्चर 1, मतलब थोड़ा ब्रीफ में हम जा रहे हैं। ऑल दिस आर थ्योरी। ओके, उसमें से इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम बोल दे रहे हैं, योर साइट सिलेक्शन, ये सब थोड़ा ज़्यादा आता है। ओके, एज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट बेस्ड ऑन FAA, ठीक है, और ICAO। अब दूसरा तुम्हारा लेक्चर क्या है, अनदर सॉरी See, the second lecture is based on your functional areas। हम बोले थे कि एयरपोर्ट मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं आता है, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है विच आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। एक सिस्टम रहता है, सिस्टम मतलब क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू सेटिस्फाई और टू फुलफिल वन आउटकम, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत सारा कंपोनेंट्स दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट, जिससे ये स्मूथली कंडक्ट हो, स्मूथली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, स्मूथली एयरक्राफ्ट लैंडिंग करे, ठीक है।
सिर्फ एयरप्लेन रख दोगे तो तुम्हारा क्या बोलते एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। या सिर्फ रनवे डिजाइन कर दोगे तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग होगा, ऐसा नहीं है। देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स। तो उसके लिए अभी इन योर सिलेबस इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुमको सब कुछ डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि एयरक्राफ्ट रनवे का डिजाइन है, ठीक है, उसमें रनवे लेंथ बेसिकली आता है, और आता है तुम्हारा रनवे का ओरिएंटेशन, ओके, और एक आता है कि टैक्सीवे का डिजाइन, ठीक है। लेकिन बाकी के बारे में भी हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, सो वी विल लर्न दिस, ओके। तो इसमें भी हम वो इन जनरल वाला एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन दे दिए है। फिर वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट, ओके। देन वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द रनवे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को एमसीक्यूज ये सब में आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रनवे। और ये जो कंपोनेंट्स है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके, कि ये किस चीज के लिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट कंपोनेंट, उसको मतलब क्यों ये क्यों बनाया गया है, क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। दूसरा है रनवे पैटर्न एंड कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में आता है रनवे ओरिएंटेशन, ओके। इन सी एयरपोर्ट हम बोले थे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रनवेज, टैक्सीवेज, बिल्डिंग्स, ठीक है, जिसका काम क्या है, फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, ओके, एंड विथ फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर्स। मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट के ऊपर ही हम लोग फोकस नहीं कर रहे, जो पैसेंजर आ रहा है उसको भी तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ रहा है, राइट। तो सब मिलाकर जो भी सिस्टम है वहाँ पे उसको बोलते हैं एयरपोर्ट। अब जनरल जो क्लासिफिकेशन हम बोले थे इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, रीजनल, हम लोग का एक एग्जांपल दो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इंटरनेशनल का मतलब है ये सर्विस करता है कहाँ पे, आउटर, मतलब इंडिया को छोड़ के, मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री में भी ये सर्विस देता है, राइट, मतलब तुमको ट्रांसफर करता है, तो दैट इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। एक एग्जांपल दो, हम लोग को कोलकाता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ इंदिरा गांधी है, वो तो दिल्ली में पहुंचे, अपना है तो देखो कोलकाता में नहीं है क्या, दमदम एयरपोर्ट मैम, ठीक है। सो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल के लिए काम आएगा, वो डोमेस्टिक के लिए भी काम आता है, ठीक है। सो डोमेस्टिक एयरपोर्ट वही है कि विद इन द सेम कंट्री, फ्लाइट्स विद इन द सेम कंट्री के लिए है, ओके। और दीज आर इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग फ्लाइट्स टू और फ्रॉम द फॉरेन एयरपोर्ट, ठीक है, ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। रीजनल मतलब रीजन टू रीजन ट्रांसफर करने के लिए जो होता है मेनली, ओके। सो यही है तुम्हारा। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट। देखो कंपोनेंट्स बोलते क्या क्या है, एक है तुम्हारा ये टीबी, मतलब टर्मिनल बिल्डिंग, जो तुमको फर्स्ट दिखाई देता है। फर्स्ट तुमको क्या एरोप्लेन दिखाई देता है जब तुम लोग जाते हो एयरपोर्ट में, या तुमको क्या रनवे दिखाई देता है, एज अ पैसेंजर तुमको क्या दिखाई देता है, पहले सबसे पहले एक बिल्डिंग दिखाई देता है जहाँ पे तुम एंटर करते हो, गेट्स, बहुत सारे गेट्स होता है, वहाँ पे तुम एंटर करते हो, राइट, एंटर करके चेक इन करते हो, अपना लगेज को वो दे देते हो, डंप कर देते हो। सो जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज है, अब वहाँ पे सिर्फ ये सब नहीं हो रहा है, यू हैव मेनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वहाँ पे, दुकान शॉप्स भी है, सब कुछ है, एवरी फैसिलिटीज फॉर द पैसेंजर जितना होना चाहिए, ठीक है, चार्जिंग भी है, सब कुछ है, दैट इज द टर्मिनल बिल्डिंग, ओके। अब एप्रोन क्या है, एप्रोन जो तुम लोग बोलते हो कि कपड़ा जो पहनते हो वो वाला एप्रोन नहीं है, यहाँ पे एप्रोन का मतलब है वेयर योर एयरक्राफ्ट विल बी पार्क्ड, जहाँ पे पार्किंग कंडीशन में रहेगा, मतलब जहाँ पे वो ऐसे खड़ा है वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगा, उस जगह पे जाके पैसेंजर को बिठाया जाएगा या कार्गोज को लेकर सामान को वो कर देगा या अनलोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस जगह पे खड़े होकर वो खड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट, दैट इज द एप्रोन, ओके। दूसरा है तुम्हारा रनवे। रनवे तो बोल लीजिए कि दिस इज द पेवमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट, ओके, मतलब पेवमेंट जहाँ से तो ये ट्रैवल करेगा, ओके। टैक्सीवे एज आई सेड इट इज द कनेक्टिविटी, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर क्या तुम उड़ के जाओगे, रनवे मतलब एकदम टर्मिनल बिल्डिंग जो सामने खड़ा है, ठीक है, तो वहीं पर उसके बगल में क्या रनवे दिखाई देता है तुमको? नो मैम।
देखो ऐसा अगर है तो ठीक है, यहाँ पे तुम लोग एंटर किए, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग रहेगा, ओके, ये जो व्हीकल्स है, ठीक है, ये है टर्मिनल बिल्डिंग। अब तुम लोग यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारा क्या बोलते हैं, एरोप्लेन खड़ा रहता है, राइट, मतलब कि जैसे वेटिंग कर रहा है तुम लोग के लिए, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट इज योर एप्रॉन, इसको बोलते हैं एप्रॉन, ठीक है। और एक टाइप का एप्रॉन है विच इज कॉल्ड दी होल्डिंग एप्रॉन। अब होल्डिंग एप्रॉन का मतलब क्या है, मेन जो एप्रॉन है जिस पर लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ पे तुम्हारा पैसेंजर उतरेगा या चढ़ेगा जो भी है, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है। लेकिन एक एप्रॉन ऐसा भी होता है वहां पे सिर्फ खड़ा रहेगा, मतलब ऑलरेडी ये लोडेड है, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ है, पैसेंजर भी है, सामान भी है, सब है, लेकिन यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रहा है, ये इट इज ओनली स्टैंडिंग इन दिस पोजिशन, दैट मीन्स इट इज इन होल्ड, जिसको बोलते हैं ना होल्ड में रखो, ये होल्ड में है अभी, इसीलिए इसका नाम है होल्डिंग एप्रॉन। होल्ड में क्यों है, क्यों हो सकता है ये होल्ड में, इसको होल्ड में क्यों रख दिया है, बोलो। यहाँ पे तो ये वाला का पर्पज है लोडिंग अनलोडिंग करने के, लेकिन होल्डिंग एप्रॉन का पर्पज क्या होना चाहिए, बोलो। অসুবিধা হলে ইউজ করা যাবে না। অসুবিধা আর অসুবিধা মানে কি, মেইনটেনেন্স, প্রবলেম আছে বা গেট ফেটে কোনো ধরুন ফায়ার এক্সিট হিসাবে ইউজ করা যাবে। ओके। इसका और एक इम्पोर्टेंट जो ये दिया गया है दैट इज कि अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक आ रहा है, मतलब यहाँ से एक प्लेन आ रहा है, ठीक है, अब इसको टेक ऑफ करना है, राइट, इस वाले को टेक ऑफ करना था, लेकिन उससे पहले इधर से उसको दिखाई दे रहा है कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो तब ये तो इसके ये मतलब जब तक ये लैंडिंग करके ये जीरो स्टॉप नहीं हो जाता तब तक तो ये यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा ना, रनवे तो एक ही है, एक ही रनवे पर लैंडिंग हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, राइट। तो क्या होता है, देखो इसको यहाँ से जाके टेक ऑफ करना था, लेकिन उससे पहले एक ट्रैफिक आ गया, तो उसको ये दे रहा है, चांस दे रहा है, गिव वे, इसको बोला कि ठीक है तुम लैंडिंग कर लो, ठीक है, ये लैंडिंग करेगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, करके फिर से ये स्लोली इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जगह खाली है, देन ये वाला अब आएगा अपना टर्न के लिए, ओके, फिर आके ये अपना स्पीड गेन करके उड़ जाएगा। सो दिस इज होल्डिंग, तो इसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है, राइट, तो ये इसको बोलते हैं होल्डिंग एप्रॉन, ओके। और टैक्सी वे मतलब है कि जो तुम्हारा कनेक्टिविटी है, मतलब कि एप्रॉन से रनवे तक, ठीक है, या रनवे से टर्मिनल तक, या रनवे से तुम्हारा क्या बोलते हैं मेंटेनेंस जगह जहाँ पे करते हैं, जैसे कि हैंगर जिसको बोलते हैं, वहां तक जो कनेक्टिविटी है, छोटा छोटा जो पेवमेंट है, ठीक है, दैट इज योर टैक्सी वे, ठीक है। टैक्सी वे मतलब कि वो मूव कर रहा है रास्ते पर, लेकिन वो उड़ने के लिए नहीं कर रहा है, वो क्या बोलते हैं ट्रांसफर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ट्रांसफर कर दे रहा है, टैक्सी की तरह काम कर रहा है, राइट। सो इसीलिए इसका नाम है टैक्सी वे एंड दिस इज द रनवे, ओके। तो टर्मिनल्स में क्या क्या आता है, देखो, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ऑल द पैसेंजर्स अराइविंग एंड डिपार्टिंग, मतलब जो भी अराइव कर रहा है या डिपार्ट कर रहा है उसके लिए जितना फैसिलिटीज चाहिए, जितना टाइम तक, हम लोग को क्या बोलते हैं, यू शुड रीच एयरपोर्ट विद इन मतलब बिफोर 1 आवर, राइट। फिर 1 आवर तक तुम बैठे क्या करोगे, वहाँ पे बैठ के वही बैठने का जगह रहेगा, अगर कुछ खरीदना है तो वो भी है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड इन दिस बिल्डिंग, ठीक है। जो अराइव कर रहा है या किसी का लेट हो गया, ठीक है, फ्लाइट लेट हो गई तो क्या करेगा, यहाँ पर ही बैठा रहेगा, बाहर तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तब तक उसका तुम्हारा फोन का बैटरी खत्म हो गया तो क्या करोगे, चार्जर सब कुछ यहीं पर ही है। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, बुकिंग ऑफिस, मतलब बुक करना है, चेक इन करना है, ये सब है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स भी हो सकता है, वेदर ब्यूरो है, लगेज, मेल रूम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेस एक्सेट्रा, सब कुछ इसी के अंदर, मतलब जो कि हम लोग को चाहिए पैसेंजर के लिए, फैसिलिटीज के लिए, तो टर्मिनल बिल्डिंग इसको बोलते हैं, ओके। एप्रॉन हम बोले थे द पोर्शन ऑफ द एयरपोर्ट यूजुअली पेव्ड इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग, मतलब जो टर्मिनल बिल्डिंग के बगल में जो ये पेवमेंट है ये भी पूरा कॉन्क्रीटिंग से किया गया है, ओके, आइदर कॉन्क्रीटिंग या उसे पेव किया गया है, ओके। तो ये जहां पे खड़ा है इसको बोलते हैं एप्रॉन, ओके, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। टैक्सी वे ये वाला देखो, दिस इज द रनवे। अब इसको रनवे से उड़ के तो नहीं जा सकता एप्रॉन में, तो कुछ रास्ता चाहिए, सो दैट कनेक्टिविटी इज द टैक्सी वे, okay. So path of an airport connecting runways with ramp,
जो रैंप से कनेक्ट कर रहा है या टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा है या अदर फैसिलिटी को कनेक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं टैक्सीवे। ओके, और ये भी इट शुड आल्सो बी डिजाइन लाइक अ पेवमेंट, हार्ड सरफेस सच एज एस्फाल्ट और कंक्रीट पेवमेंट। ओके, हैंगर, दिस इज द हैंगर। देखो हैंगर का भी बहुत सारा शेप का होगा, टी शेप का होता है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे तुम्हारा ये एयरक्राफ्ट इज केप्ट फॉर क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, सब कुछ के लिए यहाँ पे जो इसका शेल्टर, शेड हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो लार्ज शेड्स इरेक्टेड ऑन द एयरपोर्ट फॉर हाउसिंग रिपेयरिंग एयरप्लेन्स, मतलब यहाँ पे स्टोर करके भी रख सकते हैं या सर्विसिंग के लिए भी लेकर जा सकते हैं। सो दिस आर द हैंगर्स। अब बोले थे कि रनवे इज व्हाट, अ रेक्टेंगुलर एरिया जहाँ पे तुम्हारा लैंडिंग टेक ऑफ होता है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ एस्फाल्ट और कंक्रीट, मतलब पेवमेंट जैसे करते हैं डिजाइन, वैसे इसका भी डिजाइन है। ओके, नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द क्या बोलते हैं रनवेज। एक होगा कि हम जो बोले थे विंड डायरेक्शन में कर सकते हो, पैरेलल टू द डायरेक्शन या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर पैरेलली है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रनवे, और अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस विंड, जो विंड जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो विंड जाएगा उसको बोलते हैं क्रॉस विंड। ठीक है, तो अगर इट इज पैरेलल टू द क्रॉस विंड डायरेक्शन देन ये क्रॉस विंड रनवेज होता है। ओके, ये हम लोग ये टर्म्स कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉस विंड क्या है। नाउ पैटर्न्स, क्या क्या पैटर्न्स होता है, देखो सिंगल, पैरेलल, ओवन वी और इंटरसेक्शन, 4 टाइप का पैटर्न। सिंगल है, कोई रनवे नहीं है, एक ही रनवे है। ठीक है, दो दो रनवे है, पैरेलली है, सो पैरेलल रनवे। ठीक है, दो दो रनवे है, ऐसा ओपन वी। कुछ कुछ होगा इंटरसेक्टिंग टाइप का। ठीक है, सो दिस आर इंटरसेक्टिंग रनवेज। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में देखो यहाँ पे बहुत सारा ये लेटर दिया रहता है, नंबर। नंबर क्या है, दिस नंबर सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस रनवे क्या बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक, हम लोग का तो अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे कितना एंगल ये डायरेक्शन में ये ओरिएंटेशन है। अगर 270 डिग्री में है वो, देन इट इज डिनोटेड बाय रनवे 27, जैसे कि ये है तुम्हारा 27 एंगल में मतलब अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अगर ऐसा खड़ा है तो उसका 27 डिग्री करके तुम्हारा रनवे ओरिएंट किया गया है, तो दैट इज रनवे 27 और R27। ओके, अगर 90 डिग्री में है तो R09। ठीक है, और कुछ कुछ होता है कि हम लोग वही उसी पैरेलली इधर से भी टेक ऑफ कर रहे हैं, इधर से भी तुम्हारा लैंडिंग कर रहे हैं, राइट। सो इफ वी आर यूजिंग सच रनवेज देन इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, देखो R09 and 27 when the same runway is used from opposite directions। अगर ऐसा अगर आएगा then the runway is identified by both directions by this number। ओके, तो यही है तुम लोग का आज का, इतना ही था कि रनवे कितना टाइप का क्लासिफिकेशंस ऑफ एयरपोर्ट था। ठीक है, रनवे कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट्स, रनवे ओरिएंटेशन। ओके, फिर आया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन रनवे, और अच्छा हाँ यही था तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रनवे। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस है। अब कल से हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी मतलब थ्योरी भी रहेगा कुछ कुछ, बट मैक्सिमम में न्यूमेरिकल्स रहेगा। ओके, क्लियर? यस मैम। हाँ मैम। ओके वेट, ओके लेट मी टेक द फोटो, मतलब ये फोटो चाहिए हमको। यहाँ से तुम लोग का वही सब आता है कि एप्रोन किस लिए यूज करते हैं। ओके, सो एमसीक्यूज फॉर मेनली फॉर एमसीक्यूज, ये 2 लेक्चर से एमसीक्यूज आता है, और ब्रॉड क्वेश्चंस में तुम लोग का शॉर्ट नोट्स में वो साइट सिलेक्शन, ओके, एंड क्लासिफिकेशन। ওকে দেন থ্যাংক ইউ। কোয়েশ্চেন ছিল, বলো বলো ম্যাম। বলছি যে উইংটা যে প্যারালালি যায় না পারপেন্ডিকুলারলি যায়, ওটা কিভাবে মানে বুঝবো, মানে ক্লাসিফিকেশনটা কিরকম হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটার জন্য নেক্সট লেকচারে আমি পড়বো উইন্ডরোজ ডায়াগ্রাম যেটা বলেছি, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওটা তোমার হ্যাঁ গুড কোশ্চেন, ওটা নেক্সট ক্লাসের জন্য ওটা, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে।